So this is actually a second part, second part of the video. So we were at the question of comparison between bacteria and viruses, where we have done two parts. The first is cellular organization, and second is mode of reproduction. Third part is metabolic activity. Here it is mentioned the third part is metabolic activity. So can you define what is metabolic activity? बता सकते हो आप what is metabolic activity? So it is a process or an activity that occurs in a living being which constitutes all those processes which is responsible for a life in any living organism. जितनी भी वो प्रोसेसेस जो हैं जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डाइजेशन, दैट इज़ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है. सो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बैक्टीरिया आर मेटाबॉलिक एक्टिव. यस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज देयर बट वायरसेस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये जिंदा चीज़ है ही नहीं, ये बॉर्डर लाइन पे है. अगर तो ये इन्वायरमेंट में है तो ये दे आर नॉन लिविंग. अगर ये लिविंग बीइंग के अंदर चले गए तब भी ये इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी. ये तो होस्ट की जो मशीनरी है वो यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर प्रेजेंट है. सो दिस इज़ हाउ यू attempt this kind of question where you have to compare the two parts. Next, it is the A part of the question where you have to compare both viruses and bacteria. Next question also related with the viruses, that why viruses are considered to be occupying a borderline position between living and non-living forms. Very easy. I have just told you what is why they are considered as at the borderline. Because when viruses are present in an atmosphere, हवा में है, मिट्टी में है, they are non-living because no metabolic activity is there, no cellular respiration, कुछ भी नहीं है उनके अंदर. So they are considered as living, non-living. When they enter into a host, से एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर चले गए हैं, तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं. दे आर यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट टू रिप्रोड्यूस, टू मेक देयर नेक्स्ट जनरेशन. So then they can consider as a living. But जब वो आउटसाइड पे हैं, एटमोसफेयर में है, तो तब वो क्या है? नॉन लिविंग है. तो दैट्स वाई वी कॉल देम एज a borderline. They occupy a borderline position between living and non-living forms. Next, question number 5. Question number 5 is lichens. This is the last question for today's. The rest of the question we will do in the next video. Lichens are considered as good indicator of air pollution. We know, हमने पढ़ा हुआ है lichens. First of all, what are lichens? Lichens are the association. Lichens क्या होती हैं? Association होती हैं of algae and fungi. They are considered as a good indicator of air pollution. Now why? Why does lichens are not able to grow in the high polluted area, high pollution area? क्यों नहीं ग्रो कर पाते? बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो थैलस होता है, उसके ऊपर जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं. तो अगर पोर्स ही बंद हो गए तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ना गैसेज एक्सचेंज है, वो तो हो नहीं पाएगा. इनका जो थैलस है, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो पोल्यूशन के कारण क्या होता है? क्योंकि पोल्यूशन के अंदर पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, तो वो इनके जो पोर्स हैं उनको क्या कर देता है? बंद कर देता है. तो दैट लीड्स टू स्टॉप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन आ नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है. दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द प्लांट. सो लाइकन्स जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम है. दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. Lichens are the symbiotic association between algae and fungi. Explain. Yes, they are the association मतलब दो organism एक साथ रह रहे हैं. Algae and fungi. Algae provide food to the thallus and fungus
provide food and shelter to the fungus, and in return fungus क्या कर रही है, helps to the absorption of the minerals from the soil. जो सॉइल से मिनरल्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको मतलब अब्जॉर्प्शन करवाने में ये हेल्प कर रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज. तो आज जो आपके रिटर्न क्वेश्चंस जाएंगे वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं यहीं पे, और आपको एक फाइल भी आ जाएगी उसकी. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. Why do amoeba doesn't place under द किंगडम एनिमलिया? हम इसे एनिमल किंगडम एनिमलिया के अंडर क्यों नहीं प्लेस कर सकते हैं? जो मैंने क्वेश्चन आपको जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तब भी पूछा था, और ये मैंने अभी लिख दिया आपको कि हमें उसे एनिमलिया में क्यों नहीं प्लेस कर सकते. सेकेंड, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम दैट शोज द थैलस ऑफ फंगी. जो फंगी का थैलस है वो हमने डायग्राम के बेस पे मतलब डायग्राम अपनी शो करनी है. लेबलिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए. So the last question is that fungi is organism that have a multiple mode of nutrition. Explain. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके मल्टीपल मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं. जितने भी न्यूट्रिशन मोड हैं यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. लाइक सेप्रोफिटिक मोड हो गया मेथड एक है, ठीक है. एक क्लास के अंदर जब कितने मेथड्स आ सकते हैं वो सारे, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड यूज़ करती है. उसके आगे कितनी टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल यू हैव टू राइट. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपने करने हैं. प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, जो वर्क करते हैं, आप जब प्राइवेसी ओपन होती है तो उसमें फ़ोटोज़ डालें अपने होमवर्क की, ताकि मैं वो चेक कर सकूँ. आपकी क्लास से अभी तक एक भी बच्चे की मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं आई हैं. तो जब भी प्राइवेसी ओपन होती है तो आप उसको लिख के मुझे ग्रुप के अंदर ही सेंड करें. थैंक यू वेरी मच.